take Sanjit in the meeting. So today we are going to start the new topic, that is congruence of triangles. Okay, are you heard this word triangles? Yes, sir. Okay, Yes, the previous sir. topic was the Yes, sir. what was the previous topic? Who can tell me? Properties of triangle. Properties of triangle. Properties of triangles. Means you already heard this word triangle. Properties Okay. of triangle. So triangle means a triangle has three sides, okay, three angles and three vertices. Okay, triangle is a closed shape, closed figure or closed shape. Okay, now see here, congruence of triangle means what? What is the meaning of congruence? Can you tell me? Congruence means, it is not congress, congruence. So congruence means what? Combination. Hello? Combination. Combination? No. Again, congruence. Okay, I will explain you what is congruence. Congruence means we can say that same or equal. जो फिगर हमें सेम नजर आते हैं या इक्वल नजर आते हैं या उसके कोई साइड दूसरे साइड को मैच होते हैं, कोई एंगल दूसरे को मैच होते हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. नाउ सी हियर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. व्हेन वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस दैट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम कहते हैं. कब कहते हैं? उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, वो मैच करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके, नाउ बिफोर दैट लिसन हियर, इट इज रिटन हियर congruence of simple geometrical shapes. So now listen here, suppose one of the what we can say segment is there, a 4 centimeter segment is there. Suppose I am drawing here the segment like this. मैंने एक segment draw किया. Okay, this is the segment. Okay, this is suppose A, this is B, AB, this segment, the name of the segment is AB. Okay, one more segment is here, having name is suppose C and D, CD. CD is the another segment. Can we say both the segments are congruent to each other? दोनों segment same है क्या, या फिर दोनों segment equal है क्या? When we can say that, कब कहेंगे हम दोनों को congruent या फिर equal? जब उनकी सेंटीमीटर सेम होगी. हाँ, जब उनकी लेंथ सेम रहेंगी. ओके, हेलो हेलो, यस सर. आपको सुनाई दे रहा है? यस सर. क्या रहेगा? जब इन दोनों की लेंथ सेम रहेंगी तब हम कहेंगे कि बोथ द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट उठाकर यहां रखेंगे पहले, ये इसको अगर एग्जैक्टली मैच हुआ या कोइंसाइड हुआ तो हम कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है. या फिर इसकी लेंथ मेजर करेंगे, अलग से इसकी लेंथ मेजर करेंगे, दोनों लेंथ अगर सेम आती है तो हम क्या कहेंगे, बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर और बोथ आर इक्वल इन लेंथ. Okay, so like this triangles, how to find out the triangles are congruent to each other. Okay, so for that there are four tests are given there. We have to use that test to find out the given triangles are congruent to each other or not. ठीक है, अब सेगमेंट की बात तो हो गई कि सेगमेंट की हम लेंथ चेक करेंगे या एक सेगमेंट को उठाकर दूसरे सेगमेंट पे रख देंगे, ठीक है. लेकिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या बताने के लिए हमें 4 टेस्ट दिए हुए हैं. वो चारों टेस्ट को हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं या चारों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट अगर किसी ट्रायंगल में यूज होती है तो उस टेस्ट के अनुसार वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द टेस्ट. फिर से एक बार बताएं सर, फिर से एक बार बताएं. क्या? हेलो, फिर से एक बार बताओ सर, फिर से एक बार बताओ. आप सुन नहीं रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? अच्छे से सुनो आप, ठीक है, अच्छे से सुनो आप, इधर उधर ध्यान मत दो, कॉन्सेंट्रेट करो, आपको समझ में आ जाएगा. कुछ हार्ड नहीं है, इजी है. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन triangles, given two triangles are congruent to each other. Okay, so for finding the two triangles are congruent to each other, some tests are given, and that there are 4 tests to identify the given triangles are congruent to each other.
Okay, that the name of the test are here. It is given there, given the test. Okay, so listen here. I will tell you that test. First test is the triple S test. Triple S means SSS test means side 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 test. Okay, साइड 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 टेस्ट मींस व्हाट? उसमें क्या होता है, तीनों साइड दिए, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से अगर मैच होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, या फिर अगर आप इक्वल बता सकते हैं किसी रीजन की वजह से, तो हम कहेंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय ट्रिपल एस टेस्ट, बाय एसएसएस टेस्ट. ओके, सेकेंड टेस्ट इज गिवन, that is SAS means side angle side. जनरली यहां पर जो दिया हुआ है साइड एंगल साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ट्रायंगल में भी वैसा ही आना चाहिए. जनरली सीक्वेंस वही होना चाहिए कि पहले साइड फिर एंगल फिर साइड. ओके, मतलब फर्स्ट एंगल की एक साइड सेकेंड ट्रायंगल की एक साइड से मैच होनी चाहिए. देन एंगल है SAS में सेकेंड एंगल है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल सेकंड ट्रायंगल के दूसरे एंगल से मैच होना चाहिए. फिर तीसरा जो है SAS में का तीसरा एस जो है वो फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड सेकंड ट्रायंगल के दूसरे साइड से मैच होने चाहिए. मतलब दो साइड और एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल से अगर मैच होते हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएस टेस्ट. उसके बाद है ASA टेस्ट मींस एंगल साइड एंगल, यानी टू एंगल्स एंड वन साइड. इफ two angles and one side of first triangles are equal to two sides and one angle of another triangle, then we can say that both the triangles are congruent to each other by ASA test. Okay, I will explain you all the test. Okay, then you can easily understand what are the test. Okay, तो पहले मैं आपको ऐसे आपको ओरली बताऊंगा, ठीक है. देन लास्ट वन इज द राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट. right angle hypotenuse side test. This is very simple test. Generally this test we have to use in right angle triangle only. Okay, so in right angle triangle we have to use this test. Shortcut है इसका RHS test, means R means right angle hypotenuse side test, RHS test. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है. तो उससे पहले हम कुछ लिखवा लेते हैं, ठीक है. सो लिसन हियर, आपने लिखा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, लिखा है क्या सभी ने? हेलो, यस सर. ओके, ठीक है. लिखिए उसके नीचे आपको क्या लिखना है, देखो. पेन दे लोग. कॉन्ग्रुएंस मींस इक्वल. ओके, कॉन्ग्रुएंस मींस इक्वल. Below that one write down the method of examining, which is on page number 188. Open it, page number 188. Hello, page number 188. Yes sir. Okay, on the right side, on the same page, page number 188, right side, two coins are there, rupees 10 rupees के दो coin है. Okay, हाँ सर है. below that one of the statement is there, the method of examining congruence by placing one object on other is called method of superposition. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सुपरपोजिशन मेथड, कि ये सेगमेंट को उठाकर यहां रखेंगे और देखेंगे मैच होता है कि नहीं. ओके, दिस इज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर और नॉट. ओके, सो दैट यू हैव टू राइट. So you can write it later on also. So leave 2-3 lines there. Sir, please repeat that. Page number 188. Page number 188. राइट साइड में दो कॉइन है 10 रुपीज के, उसके नीचे तीन लाइनें दिए हैं. The method of examining congruence of placing congruence by placing one object on the other is called the method of superposition. वो लिखना है आपको, ठीक है. उसे टिक करके रखो, उसे टिक कीजिए. किए? ठीक है. देन लिखिए नेक्स्ट हेडिंग,
congruence of circle, page number 189. Congruence of circles 189 पेज नंबर, राइट साइड में देखिए, वो लिखना है आपको. फर्स्ट 2 लाइंस, 2 circles सर can, 2 circles can, पेज नंबर 189, पेज नंबर 189, राइट साइड में congruence of circles, congruence of circles. Okay, 2 lines are there. यस सर 2 circles can coincide exactly only if their radii are equal. वो आपको लिखना है, ठीक है. आप उसे बाद में लिखना, पहले समझ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. 2 congruence of circles, when we can say that 2 circles are congruent to each other. Okay, 2 circles can coincide exactly only if their radii are equal. जब किसी सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं तो वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं. मतलब एक सर्कल को आप दूसरे सर्कल के ऊपर रखे तो वो कोइंसाइड होते हैं. जैसे कि एक 10 रुपीज का कॉइन दूसरे 10 रुपीज के कॉइन के ऊपर अगर आप रखते हो तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं, मैच होते हैं, ठीक है. तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं. और सर्कल में क्या होता है, when we can say that the 2 circles are said to be congruent if their radii are equal. 2 सर्कल, अगर 2 डिफरेंट सर्कल है, दोनों की रेडियस अगर सेम है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो आपको सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रखने की जरूरत भी नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं both the circles are congruent to each other. ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आया. दोनों सर्कल की अगर रेडियस सेम है तभी वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसके नीचे लिखा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोनों, फिर बाद में वो दोनों पॉइंट्स आपको लिखने भी है. लिखने के लिए आप जगह छोड़ देना, अभी नहीं लिखना है. ओके, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो, आपको हेडिंग भी लिखनी है ये वाली, कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स में क्या लिखा हुआ है, 2 squares are said to be congruent if one side of square is congruent to one side of other. Okay, when we can say that 2 squares are congruent to each other if one side of first square is equal to or equal है, हाँ, 2 squares are said to be congruent if one side of square is congruent to one, if one side of square is congruent to one side of other. Okay, मतलब एक सर्कल की सॉरी क्या, स्क्वायर की एक साइड अगर दूसरे स्क्वायर के दूसरे किसी साइड से अगर मैच होती है, उसकी भी एक साइड से अगर मैच होती है, तो हम दोनों स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. ठीक है, जब समझो दोनों 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, उस स्क्वायर में से पहले स्क्वायर की एक साइड दूसरे स्क्वायर की एक साइड से अगर मैच होती है तो हम दोनों स्क्वायर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, 2 rectangles are said to be congruent if the length and breadth of one rectangle are equal to the length and breadth of other rectangle. Okay, hello, Yes, sir. 2 rectangles Yes, are said to be congruent if length and breadth of one rectangle are equal to the length and breadth of other rectangle, then we can say that both the rectangles are congruent. ओके, तो रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब पहले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ से इक्वल होते हैं, तब दोनों रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है. ओके, Yes, sir. ये दोनों पॉइंट्स आपको Yes, लिखने sir. हैं. अभी मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज बताऊंगा. पेज नंबर 190 निकालो, पेज नंबर 190, एक्सरसाइज 15A. Exercise 15A, see there, question first, measure and state which of the line segments are congruent. Can you tell me? Do you have scale? Yes, sir. हाँ, तो आप Yes, sir. देखो, A और B को मैच करके देखो, स्केल से मेजर करो और बताओ क्या A B कॉन्ग्रुएंट है.
ए और बी कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। तो वहां ऊपर लिख दीजिए ए एंड बी। ए बी को और कोई मैच हो रहा है कि सी डी ई एफ में से कोई मैच होता है? नो सर। नहीं। तो ए एंड बी लिखो, पहला लिखिए ए एंड बी। ए एंड बी लिखे, वही टेक्स्ट बुक में लिखे तो भी चलेंगे, या फिर नोटबुक में नीचे लिखो, नोटबुक में लिखो आप नंबर 1 देखे ए एंड बी, नंबर 1 दीजिए और आगे लिखिए ए एंड बी। मतलब क्या है, ए और बी मैच होते हैं, मींस बोथ द ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, हेलो। यस सर। अभी देखो सी, हाँ सी सेगमेंट जो है, सेगमेंट सी को कौन सा सेगमेंट मैच होता है? डी सी एफ, बताओ डी ई एफ। सी एंड एफ है क्या? यस सर। ई भी है? अच्छे से बताओ, सी ई एफ तीनों है क्या? नहीं, सी और एफ। तो लिखिए सी एंड एफ, सी एंड एफ। नहीं है सर। हाँ, डी और ई किसी को भी मैच नहीं करते, डी एंड कौन सा? ई। किसी को भी मैच नहीं करते। तो और वो खुद रहने भी दो, match जो नहीं मैच हो रहे वही लिखना है आपको। हेलो, जो मैच हो रहे वही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। हो गया? हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है। यस। क्वेश्चन फर्स्ट ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। फर्स्ट आप नहीं लिखे टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में तो चलेगा। क्वेश्चन सेकंड बता रहा हूं, वो लिखना है आपको। ठीक है, देखो गिवन सेगमेंट ए बी, देखो ए बी के ऊपर एक डैश बना हुआ है। हेलो, ए बी के ऊपर एक डैश बना हुआ है, एक लाइन है, ठीक है, उसे सेगमेंट कहा जाता है। गिवन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी, वो जो सिंबल दिया है वो कॉन्ग्रुएंट का है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब मैंने पहले ही बताया, कॉन्ग्रुएंट मींस व्हाट? हेलो, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। तो इक्वल के लिए हम ये साइन देते हैं, इक्वल के लिए हम ये साइन देते हैं। ठीक है, ऊपर एक इस तरह से अगर आप एस जैसा बना दिए तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, ये हो गया इक्वल, दिस इज इक्वल। और इसके ऊपर अगर आपने ऐसा सिंबल बना दिए तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। अब इस सिंबल को कहना है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, नाउ लिसन हियर, गिवन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी, स्टेट वेदर AC congruent BD and Y, AC congruent BD and Y। देखिए AB and CD, तो AC और BD congruent है क्या और क्यों है? देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला प्रॉब्लम। राइट डाउन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। A segment is given there A B C D like this। यहां से सेगमेंट दिया हुआ है, दिस इज D, दिस इज A। यहां पर है कौन सा? B एंड C। ओके, व्हाट इज गिवन हियर? यहां ये दिया हुआ है कि सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी। ए बी मीन्स ये वाला, यहां से यहां तक ये, और यहां से यहां तक ये सी डी। ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कौन सा? सी डी। ये दोनों इक्वल हैं, ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन इक्वल है। समझ में आ रहा है? ये गिवन, ये दिया हुआ है, लिखना है यहाँ पे गिवन। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दिया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल है करके, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए रीजन लिखना है गिवन। क्वेश्चन ये है, अगर ये दोनों सेगमेंट इक्वल है तो क्या ये AC यहां तक और ये BC सॉरी BD ये इक्वल होते हैं? यस सर। क्यों होते हैं? कोई पूछे भाई? because The length is same. Length is same. लेंथ इज सेम। ओके, अगेन लेंथ सेम है। और देखो पहले सेगमेंट ए बी था, बाद में कह रहा है क्या? AC। AC कह रहा है ना, AC और ये BD, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये कह रहा है ये। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, ये जो इतना पोर्शन जो है ये वाला BC नाम का,
ये पोर्शन इसमें भी ऐड हुआ है, AB में ऐड हुआ ये। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? पहले AB था, ये BC नाम का पोर्शन मैंने इसमें ऐड किया, तो अब ये A से लेकर B तक नहीं, A से लेकर C तक चला गया। ठीक है, ऐड होने के बाद पहले ये इतना ही था, मैंने इसे ऐड किया तो ये पहले CD था, अब ये BD बन गया। समझ में आ रहा है? मतलब BC जो है ये कॉमन है दोनों के लिए। BC is the common segment, and common segment we added on both the segments. एक कॉमन कांस्टेंट सेम लेंथ दोनों साइड में ऐड हुई है, जो पहले से ही इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, उसमें सेम साइड सेम सेगमेंट ऐड हुआ है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों के पास 10 रुपीज है। हेलो, समझ में आ रहा है? दोनों बच्चे हैं, दोनों के पास 10 रुपीज है, तो वो कॉन्ग्रुएंट रुपीज है, इक्वल रुपीज है ना? Yes, sir. मैंने दोनों को अगर 5 रुपीज दे दिए, प्लस 5 इसको भी दिया 5 रुपए और इसको भी दिया 5 रुपए, तो क्या अब ये कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे या नहीं रहेंगे? अब दोनों के पास इक्वल रुपीज है या नहीं? क्वेश्चन ये है मेरा, दोनों के पास इक्वल रुपीज है या नहीं? 5 रुपए देने के पहले इक्वल थे, Yes, sir. अभी 5 रुपए देने के बाद भी इक्वल है, Yes, sir. है ना? पहले 10 रुपए थे, इक्वल ही थे, मैंने 5 मतलब सेम अमाउंट दोनों इसमें ऐड कर दिया, तो भी वो इक्वल ही है। 10 नहीं हुए लेकिन 15 तो हुए, लेकिन इक्वल ही हुआ ना, 15 Yes, sir. मतलब सेम अमाउंट ऐड करने से वो इक्वल ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर सेम लेंथ ऐड हो रही दोनों साइड में, जैसे यहाँ +5 हुआ, यहाँ पे +BC ऐड हुआ है, इसलिए ये सेगमेंट दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो रीजन क्या लिखेंगे हम? सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BD। रीजन लिखना है कि सेम सेगमेंट सेम लेंथ वी एडेड ऑन बोथ साइड। ओके, BC इज द कॉमन। क्या लिखेंगे? सेगमेंट BC इज कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट ऐड किए हमने। ठीक है, एक्चुअली लिखेंगे इस तरह से कि ये AB है, AB प्लस AB में क्या ऐड हो रहा है? BC ऐड हुआ। ठीक है, और इधर क्या था? CD है, सेगमेंट CD, तो इस साइड में भी मैं BC ही ऐड कर रहा हूं। देखो क्या किया मैंने, आपको बता रहा हूं। दिस इज गिवन AB, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD, मैंने वही रखा है, AB कॉन्ग्रुएंट CD लिखा है, सिर्फ दोनों इसमें ये कॉमन ऐड किया मैंने, BC देखो इधर भी ऐड किया, ये दिख रहा है, CD में BC ऐड किया, ये दिख रहा है आपको। ओके, देखो AB प्लस BC, देखो AB प्लस BC मतलब टोटल AC हुआ। हेलो, ये AB प्लस BC टोटल AC हो गया। अभी पहले AB था, फिर BC ऐड हुआ, अभी टोटल AC हो गया, तो आप इसके जगह AC लिख सकते हो। AC कॉन्ग्रुएंट से सेगमेंट कौन सा आएगा अभी? CD प्लस BC, CD प्लस BC मतलब B से BD. बन जाएगा, BD बन जाएगा। आपको यही पूछा है, ठीक है, इसलिए AC और BD क्या हो जाएंगे? कॉमन। क्या लिख सकते हैं? सेगमेंट BC इज कॉमन, सेगमेंट BC इज कॉमन। ठीक है, वहां लिखना है सेगमेंट BC इज कॉमन, सो बोथ द सेगमेंट आर। देखो AC कॉन्ग्रुएंट BD, मतलब ये अभी प्रूव हो गया कि ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा है नीचे का? नहीं No, sir. AC कॉन्ग्रुएंट BD एक कहा, नहीं दिख रहा है सर। हाँ, एक काम करो, यहाँ लिखो, ये वाला लिखो नीचे, AC कॉन्ग्रुएंट BD लिखना है। हाँ, दिख नहीं रहा आपको, मैं बता रहा हूँ, आप वो लिखिए। हाँ, लिख दिया सर। क्या क्या लिखना है? सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट, देखो ये सेगमेंट AC, ये वाला सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BD लिखना है, BD सेगमेंट BD लिखना है। ओके, हेंस प्रूव, क्योंकि दोनों साइड में सेम अमाउंट ऐड हुआ है। ओके, नाउ ओके सर। अरे एक मिनट साइड में हो जाओ।
Over. हाँ सर। नो सर। Now listen here. Question सर number आपने 3rd. वहाँ पे क्या लिखा है? CBC is, सर आपने वहाँ पे क्या लिखा है? CBC is कॉमन। अच्छा हाँ, BC segment BC is common. 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 Okay. अब क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd. गिवन सेगमेंट Yes, PR. sir. आप क्वेश्चन 3rd देखिए और साथ में डायग्राम भी देखना है, ठीक है। देखो गिवन सेगमेंट PR, पहले देखिए PR कहां पे दिखा आपको? P और R, हाँ सर, ये सर दिखा सर। इससे लेकर R तक बीच में Q है। ओके, यस सर। तो गिवन सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QS, देखो QS कहां पे? बीच में R है उसके, ठीक है। तो दिया हुआ है कि QR is PR, common. लिसन हियर, गिवन सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QS इज PQ कॉन्ग्रुएंट RS एंड Y। समझा क्या मीनिंग? सेम इसके जैसा है, नहीं। हाँ सेम पहले इसके जैसा जैसा है, सिर्फ क्या किया है, दोनों के पास Name change 15-15 रुपीज है, तो कॉन्ग्रुएंट है। दोनों से मैंने 5-5 रुपए वापस ले लिए, तो दोनों के पास 10-10 है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? ये पूछा है। पहले कॉन्ग्रुएंट थे 15-15, रहेंगे मैंने रहेंगे सर। उनमें उनके 5-5 रुपए वापस ले लिए, तो वापस लेने के बाद क्या वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? ये पूछा है। हाँ जैसे ऐड होने के बाद कॉन्ग्रुएंट है कि हमने प्रूव किए, तो क्या सेपरेट करने के बाद भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं? वो पूछ रहा है। तो होते हैं, हाँ होते होते हैं। हैं। ठीक है। यहाँ होते एडिशन हैं। के, यहाँ प्लस के जगह, यहाँ प्लस के जगह माइनस साइन रहेगा, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं। सेगमेंट ABCD के जगह दूसरे सेगमेंट रहेंगे, ठीक है। सेगमेंट ABCD के जगह वहां दूसरे सेगमेंट रहेंगे। चलो लिखते हैं वो वाला प्रॉब्लम। ओके, सो राइट डाउन। सेगमेंट बना लेता हूं, PQRS सेम वैसा ही है। P यहां पर है Q, ये है R एंड दिस इज S। PQRS, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन हियर? PR सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट विच वन? QS। दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QS, PQRS पूछा है। PQ मतलब आपको QR माइनस करना है, तो PR में से हम क्या करेंगे? QR माइनस करेंगे। ये जो PR दिया हुआ है सेगमेंट PR, ठीक है, PR मतलब यहां से यहां तक, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम QR, ठीक है, माइनस सेगमेंट QR कॉन्ग्रुएंट बताएंगे यहां पर। और यहां पे पहले से कौन सा है? QS, तो QS में से भी हमें क्या माइनस करना है? QR ही माइनस करना है। सेगमेंट QR मतलब ये जो कॉमन है, QR जो कॉमन है, ये वाला, ये पोर्शन, ये माइनस कर रहे हैं हम दोनों साइड से, ठीक है। अब देखो इतने में से इतना गया, तो ये बचा रहेगा। हेलो, टोटल PR है, देखो PR है, ठीक है। ये PR में से ये QR माइनस कर रहा हूं मैं, इतना पोर्शन। ये 10 रुपीज है और ये 5 रुपीज है। ये 10 में से मतलब टोटल 15 हुआ, ये 15 में से ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल PR में से QR माइनस हुआ, तो रहेगा आपका क्या? PQ, मतलब इसका माइनस करेंगे तो ये बनेगा PQ कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये QS में से ये माइनस हो गया, तो इतना ही बचेगा, तो इसका नाम है RS। ओके, हेलो, ये आपको प्रूव करना है। हेलो, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर, ये एक दिया बार हुआ है। समझाओ ना। दोनों में से मैंने कॉमन QS QR जो है, QR मैंने माइनस किया, इतना पोर्शन माइनस हुआ, तो इसका इतना बचेगा और इसका इतना बचेगा, तो वही आपको प्रूव करना है। देखो PQ कॉन्ग्रुएंट RS, वही पूछा है, PQ कॉन्ग्रुएंट RS। राइट डाउन दिस। सर हो गया। हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स
are congruent and each congruent in each figure? Sir, in square, the four-sided is congruent. हाँ देखो, what is the question here? What is the question? Which of the line segments are congruent in each figure? So first figure over this, ये मिटाऊं मैं? Square. Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. मिटा रहा हूं मैं. Yes, sir. हाँ अब देखो, क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? योर फर्स्ट फिगर, फर्स्ट डायग्राम दैट इज स्क्वायर. पहली डायग्राम आपकी स्क्वायर की है. ओके, एंड नेम ऑफ द फिगर इज ABCD. ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज D. अब पहले डायग्राम में Which of the line segments are congruent in each figure? अब इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? इसमें AB कॉन्ग्रुएंट BC है, BC कॉन्ग्रुएंट CD है, CD कॉन्ग्रुएंट AD है. सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर है, वहां लिखा हुआ है स्क्वायर है करके. दिस इज द स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है, उसके नीचे नाम लिखा है. ओके, तो आप सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं. In a square, all sides are equal in length. So that's why we can say that all the sides are congruent to each other. सभी सेम है, इसलिए सभी साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. वो हमें यहां लिखकर बताना है. कैसे लिखेंगे? सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कौन सा? BC. ओके, अगेन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD. देन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कौन सा है? AD. चारों भी इक्वल बताएंगे. AB कॉन्ग्रुएंट BC, BC कॉन्ग्रुएंट CD, CD कॉन्ग्रुएंट AD. हो गया, चारों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. ओवर. अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. ऐसे ट्रायंगल का लिखोगे Yes, आप? sir. हेलो, ट्रायंगल का लिखोगे आप? हाँ, sir. AD. तीन ही लिखना है गिवन आपको. लिखे ना सर, गिवन AB congruent to AC. Sir, triangle का. AB congruent to AC. AB congruent to सर गिवन लिखे ट्रायंगल ना. में आप ऐसा लिख सकते हो, AC congruent to ABC. तो आप ये लिखना है AB कॉन्ग्रुएंट to BC. AB कॉन्ग्रुएंट BC एंड BC कॉन्ग्रुएंट BC congruent AC. हो गया, तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. AB कॉन्ग्रुएंट BC, BC कॉन्ग्रुएंट AC. मतलब AB कॉन्ग्रुएंट AC भी होता है. ठीक है, अब देखो, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है. मतलब AB BC को भी कॉन्ग्रुएंट है, AB CD को भी कॉन्ग्रुएंट है, और AB AD को भी कॉन्ग्रुएंट है. सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. यहां पर भी इक्विलैटरल है, मतलब तीनों साइड इक्वल. जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं. तो तीनों इक्वल बताए हमने, कॉन्ग्रुएंट बताए, मतलब AB BC को कॉन्ग्रुएंट है, यानी AB AC को भी कॉन्ग्रुएंट है. ओके, यस सर. नाउ लास्ट फिगर, Yes, sir. दैट इज साइड में हो जाए, एक ही मिनट. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में देखो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड. ये इरेज कर रहा हूं मैं. PSQR. ओवर दिस